It is being recorded now. Okay. So as per our lecture plan, today's topic will be echolocation designator, and we'll also have a look on flight plan and IATA code. What is that? How it actually works? What is the requirement of these things? So today, two major topics we will finish. And if time permits, we'll have a look on another thing also. So first of all, yesterday we had a look on echolocation designator method. Done? There we have seen by the example of एयरपोर्ट मुंबई कि किसी भी एयरपोर्ट का इकाव लोकेशन डेजिग्नेटर में उस लोकेशन का नाम कैसे नॉमिनेट होता है सो दैट इट कैन बी ऑफ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड. देयर वी हैव सीन AFSRA, लाइक मुंबई का जो पहला लेटर कोड है V विक्टर, ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट this airport belongs to Indian AFSRA. AFSRA means Aeronautical Fixed Services Routing Area. So इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट विक्टर के नाम से रहेगा. Then it comes FIR region. So in India we are having 4 FIR region: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Under Kolkata only there are 2, ठीक है, one is Kolkata and another one is Guwahati. But Guwahati FIR is operating up to flight level 265 only, 26,500 feet only. उसके बाद उसका कमांड वापस कोलकाता के पास चला जाता है. So second letter code was FIR region code. Next one was these last two letter is getting inspired from, ठीक है, again I am saying it has not been taken or it has not been counted, it is inspired. अगर आप किसी से इंस्पायर होते हो, आपका कोई आइडियल होता है, so you may follow his thoughts and his ideology blindly or you may follow slightly, not fully. If I say कि my ideal is Abdul Kalam Azad, it doesn't mean कि I'll follow his ideology, his thoughts, his trainings completely. ठीक है? Similarly, last 2 digit of echolocation designator is inspired from name of the VOR station as well as city code. अब असली गेम यहीं पे है, ठीक है. There, for an example, we had seen, ठीक है, again we'll have a look on that. We had learned how to there that how to write some of the airport codes. ठीक है, we'll again have a look there. For that, जैसे मुंबई का हो गया VABB, विक्टर अल्फा ब्रेवो ब्रेवो. यहां पे क्या हो गया? V means Indian AFSRA, A means मुंबई FIR रीजन कोड एंड डबल B, लास्ट में 2 बार B कहां से आया? बिकॉज VOR स्टेशन ऑफ मुंबई is being represented with letter code ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो. तो जो 3 लेटर का लेटर कोड होता है, ठीक है, उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ठीक है, वहां से हम लोग नाम काउंट करते हैं. तो इट बिकेम VABB फॉर मुंबई. नेक्स्ट we'll have a look on Aurangabad. First and third letter of Aurangabad is A and U. So Aurangabad will be called as VAAU. Then it comes to Nagpur, VANP. ठीक है, this is the ideal procedure, this is the ideal method. But आपके यहाँ पे क्या कहते हैं in India, just tell me honestly, how many of us are following the rules as per the law? हम लोग कितने लोग हैं जो कि रूल को फॉलो करते हैं? Even the rule makers are not following the rule. ठीक है, rule makers are not following the rule of India. So what happened? This was a theory कि while writing the name of any airport, first and second letter will be as per ICAO standard and third and fourth letter will be taken from first and third letter of VOR code or
फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ एनी सिटी कोड, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया सही से. सो देर आर मेनी एक्सेप्शन इन airport name writing. There are many exceptions. So whatever is there, we'll have a look. But अगर आपको किसी भी एयरपोर्ट का ब्लाइंडली लेटर कोड दे दिया गया है VOR का और बोला जाए कि इसका एक इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर लिख के बताओ, तो आप एज पर द रूल फॉलो करोगे अगर आपको उसका ओरिजिनल में इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर पता नहीं है तो जो रूल आपको पढ़ाया गया है वहां से निकाल के लिखो. ठीक तो है. फिर हाँ बोलो 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 बोलो, गो अहेड गो अहेड. जैसे आपने MNP लिख दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम्म, रीजन है, मतलब साउथ नॉर्थ जो भी है, वेस्टर्न, ये कैसे पता वेरी चलेगा? गुड वेरी गुड. आता हूँ डेफिनेटली डेफिनेटली. ये जो चार्ट आपको दिया गया है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में चार्ट नंबर पहले लिखा रहेगा. ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑन वन सैंपल पेपर. ठीक है, लेट मी शो यू देयर. एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में चार्ट नंबर लिखा हुआ रहेगा. देखो, चार्ट 1, राइट. और इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर जो हमने सीखा उससे कहीं भी एज अ स्टूडेंट हम लोगों को एयरपोर्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को एयरपोर्ट कोड समझने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. नाउ चार्ट नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 8 तक में कोई सा भी है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा. उसके अलावा सपोज नहीं लिखा हुआ मिला है तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि कौन से चार्ट को फॉलो करते हुए आपको आंसर राइटिंग करनी है. ठीक है. सपोज एग्जामिनर ने भी नहीं बताया और क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ है, फिर आपको कैसे लुकआउट करना है? जस्ट हैव अ लुक. 4 डिजिट का एयरपोर्ट कोड हमेशा लिखा हुआ है. ठीक है. VOR कोड में नहीं लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में. एग्जाम में जैसे डिपार्चर एरोड्रोम VIDP, चलो डिकोड करते हैं. कैसे पता चलेगा? सबसे पहले लिखा है V, राइट, यानी इंडिया का एयरपोर्ट है. वैसे भी आपको आरटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दोगे सारा एयरपोर्ट इंडियन ही रहते हैं. एक आध बाहर का एयरपोर्ट का क्वेश्चन आता है, हम लोग उसको देखेंगे बाद में. ठीक है. तो सारा एयरपोर्ट इंडिया का V. उसके बाद है I, मतलब दिस एयरपोर्ट बिलोंग्स टू नॉर्दर्न रीजन. इधर वाले पे ध्यान दो. फिर क्या आया? DP. अब बताओ चार्ट नंबर 1 में नॉर्थ रीजन में कितने सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनके नाम में या जिनके VOR कोड में D या P इंक्लूडेड है? कितने सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं? कोई है? देख के बताओ. चलो हम लोग देखते हैं वन बाय वन. जयपुर नहीं, जोधपुर नहीं, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, जलालाबाद, सिकंदराबाद, कराची, चिलड़की नहीं है. इट मीन्स नॉर्थ रीजन. अब देखो, अब आप बोलोगे नॉर्दर्न FIR कैसे पता करेंगे? चार्ट पे जो ग्रीन कलर का लाइन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी चार्ट रीडिंग टेक्निक्स में. चार्ट पे जो ग्रीन कलर का लाइन है, इट इंडिकेट्स द FIR बाउंड्री. यहां से ऊपर है आपका नॉर्दर्न FIR. देखो लिखा हुआ भी है दिल्ली FIR. देखो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है ना, दिल्ली FIR, राइट. मीन्स इसके बाद से हमारा दिल्ली FIR शुरू होता है. अब अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, कि VIDP इज वन ऑफ योर एयरपोर्ट जहां से आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, तो वेरी सिंपल, हमारा सबसे श्योर शॉट डाउट जाएगा कि VIDP हो ना हो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट है, पहला. ठीक है. उसके बाद सपोज आप बोलोगे कि सर हो ना हो, शायद या एजम्पशन, इस बेसिस पर तो हम एग्जाम अटेंड नहीं कर सकते. ठीक है. दैट इज नॉट अ राइट डिसीजन कि हम ऐसे कैसे सर एग्जाम अटेंड कर लें. आप बोलो सर हो ना हो दिल्ली हो, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. उसके बाद इसी डाउट को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए रूट पे ध्यान देंगे. ठीक है. रूट पे देखो क्या लिखा हुआ है, DPN विस्की 13 साउथ JJP. अगर हमारा एक डाउट गया दिल्ली, उसके बाद हम देखेंगे क्या विस्की 13 साउथ जो एक रूट है दिल्ली से चालू हो रहा है? यस, मतलब हमारा दिल्ली एयरपोर्ट ही है.
डन। दिल्ली से जेजेपी, देखो डीपीएन यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, डीपीएन मतलब दिल्ली, जेजेपी जयपुर विस्की 13 साउथ, मीन्स हमारा यही एयरपोर्ट प्लान में है। एनी हाउ हम लोग सारे एयरपोर्ट कोड का प्रैक्टिस करेंगे डेली इन आवर क्लास एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, ये मैंने पिछले 2 सेशन से शुरू किया है बिकॉज मेनी स्टूडेंट वाज स्ट्रगलिंग। तो हम लोग सारे एयरपोर्ट का प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी एयरपोर्ट के लोकेशन डेजिग्नेटर लिखने में कोई चेंज है तो हम आपको एज एन एक्सेप्शन नोट करवाएंगे। डोंट वरी, आज तक मैंने किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं देखा जिसको इकाव लोकेशन डेजिग्नेटर लिखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं, खास करके फ्लाइट प्लान के मेथड पे, कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जस्ट हैव फेथ ऑन मी। इस और ये टॉपिक पे तो डीपीएन खास जो करके लिखा हुआ मैंने, है, हाँ हाँ, ये जो डीपीएन जो लिखा डी, हुआ है वो दिल्ली के नीचे जस्ट वो है क्या, मतलब व्यूआर हाँ, जो अभी आप बोल रहे थे वही है क्या वो? वीओआर कोड है, वीओआर कोड है। इस जैसे एयरपोर्ट पे जो व्यूआर कोड है, वीओआर जैसे आपने स्टेशन मुझे लगा यही हुआ है, बोला, हाँ जैसे अभी आपने बोला था कि जब हमको लास्ट वाला जो लेना है, मतलब उसको हाँ, क्या बोल रहे थे अभी आप, जो भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट हाँ एंड थर्ड लेना है, तो मेरे हिसाब से तो डीएनएन हो हाँ, जाएगा, मतलब अभी जैसे आप बता रहे हो तो वी वो आई डी एन होना चाहिए, यस, हाँ, राइट, हाँ, राइट, वी आई डी एन होना चाहिए। बट उसके पहले मैंने क्या बोला कि हाँ, वी मतलब एज अ इंडियन कितने रूल को फॉलो करते हैं? कुछ नहीं। नहीं, मैं ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन हाँ मतलब हाँ ऐसा थोड़ा-सा मतलब ये सब पता होना चाहिए ना, मतलब वैसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी हाँ, चाहिए, क्योंकि मैं डीएन डीएन तभी, सोचूँगा तभी, और बिल्कुल डीडी हो बिल्कुल, जाएगा। दैट्स वाई, तभी मैंने आपको बोला ना कि हम लोग हर एक चार्ट पे आपको इको लोकेशन डेजिग्नेटर प्रैक्टिस कराऊंगा, 1 चार्ट डेली, एक दिन में एक चार्ट का। ठीक है, एंड लेकिन आई ऐसा भी कुछ बना इंश्योर्स कि करके रख, जितने सर, नहीं, ये टफ है ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए नहीं, आप नहीं, बस टफ इतना नहीं, मैं ब्राइटली पूछ रहा मान हूँ के बस, चलो। ऐसा भी कुछ बना करके रखे हुए हैं क्या, कि जैसे मान के चलिए दिल्ली के लिए डीपी हो गया, इसी तरह और जितना भी है उसमें हम्म, से कुछ ऐसे जो कॉमन हो? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, डोंट वरी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, कोई लिस्टिंग नहीं है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हैव अ फेथ ऑन मी। आप 2-3 क्लास अटेंड करो ना कंटिन्यू, आपको लगेगा कि इट वाज नथिंग। ठीक है, बट आप अपने मन में ये मान के चलो, सपोज आपको सडनली ग्वालियर का निकालने के लिए बोल दिया, तो आप हमेशा एज पर द रूल ही फॉलो करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर आपको पता है, एक दो एक्सेप्शन, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, सो डेली टू डेली विल सी 1 चार्ट एट ए टाइम एंड वट एवर द एक्सेप्शंस आर देयर आई विल टेल यू। ठीक है, अभी देखो, व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द प्रॉब्लम फॉर चार्ट इन एग्जामिनेशन, जस्ट हैव अ लुक। we'll have a look on चेन्नई एयरपोर्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पॉपुलर एयरपोर्ट है चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई एयरपोर्ट सबसे पहले निकालता हूं कौन से मैप में है। राइट, देखो, मद्रास, भोपाल, हेयर, ठीक है, चेन्नई, VABB जो हमने एज पर द रूल फॉलो किया, मुंबई में काम किया, नागपुर उसके हिसाब से निकला, औरंगाबाद उसके हिसाब से निकला। राइट, नाउ लुक एट द चेन्नई, लेटर कोड है MMV, VO, M भी होना चाहिए चेन्नई का, लेकिन इसका है VOMM, चेन्नई का। ठीक है, दिल्ली का भी आपने देखा कि DPN में VIDP है दिल्ली का। फिर आप बोलोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हो सकता है कि थोड़ा सा गलत पढ़ा रहे हो, कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर के बदले फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर का यूज होता है। राइट, आपको ये भी डाउट आएगा कि दिल्ली और चेन्नई में तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर काम किया सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, थर्ड के बदले फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर यूज होता है। राइट, नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ही यूज होता है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस कि वी आर ब्रेकिंग द रूल्स, तो उसके लिए चलो एक और एयरपोर्ट देखते हैं। विल हैव अ लुक ऑन कलकत्ता एयरपोर्ट, वहां पे आपको असली पिक्चर पता चलेगा कि सही में हम लोग मिस्टेक ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा। गो ऑन CEA, आपको अगर बोला जाए कि इसका एयरपोर्ट कोड लिख के बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा? VECA,
या फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर लोगे तो VECE, राइट, या चलो सेकेंड थर्ड ही ले लेते हैं, VEEA, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी में यही 3 बनेगा, राइट, कोलकाता के लिए। लेकिन कोलकाता का एयरपोर्ट कोड है VECC, ठीक है। सो वट एवर इज द रूल फॉर अस, वी आर गोइंग ऑन एक्सेप्शंस, बट एज आई टोल्ड कि हमको एयरपोर्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम फ्लाइट प्लान को देखेंगे जहां पे हमको एयरपोर्ट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है, हम बस उसको डिकोड करेंगे कि अगर उसने लिख दिया VIDP, इट मीन्स कौन सा एयरपोर्ट से हमारा डिपार्चर होगा। क्लियर? रूल यही बोलता है कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ VOR कोड और सिटी कोड विथ लेटर फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। बेंगलोर, दैट इज BIA, बट इसका जो लेटर कोड निकल के आता है दैट इज VOBL। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि हमको बस एयरपोर्ट कोड समझने की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाने की जरूरत कभी आई, हमको उसके एक्सेप्शंस का एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है कि क्या है, तो हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को ही फॉलो करेंगे। हाउएवर, आई पर्सनली इंश्योर्स कि आपको किसी भी लेटर कोड को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन बाय वन आई विल गिव यू एग्जांपल। टुडे वी विल स्टार्ट विथ चार्ट नंबर 1, ठीक है। You just tell me the location designator as per your idea. If that is correct or not, I will tell you. If there is any exception, I'll let you know. Yes, there is exception. Just make a correct note. And trust me, that is not a very big deal. And I told na, I had never seen any student who had struggled in writing the VOR code or writing the echolocation designator. ठीक है? Don't be worried. Everything will be स्मूथर देन एवर। खास करके ये तो टॉपिक बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो, तो इससे इफ क्वेश्चन यू, क्या आता है सर, मतलब कुछ थ्योरी या नहीं, कुछ प्रैक्टिकल? नहीं, मैंने बोला ना, कुछ नहीं, ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल, इससे क्वेश्चन तो फिर हम आता ही क्या नहीं करेंगे? है। हाँ, वेरी गुड। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, देखो सैंपल पेपर, तो यहाँ पे उसमें तो लिख लिखा दिया होगा। डिपार्चर एरोड्रोम VIDP। कैसे पता करोगे क्या है अगर आपको रूल ही नहीं मालूम है? अच्छा। डेस्टिनेशन एरोड्रोम लिख दिया VOBL, कैसे पता करोगे? अंडरस्टूड? हम्म। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। डन। जोधपुर के लिए क्या होगा? ट्राई टू राइट द नेम फॉर जोधपुर। हाँ सर, जोधपुर दिखाइए। नो, you will tell me what you will write for जोधपुर। जयपुर है जोधपुर का, जोधपुर, VIJP। ये रहा जोधपुर, अच्छा, जोधपुर, VIJO। 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 You can tell by phonetics so that it can be easily understandable to me, ठीक है। यस, जोधपुर का है विक्टर इंडिया जूलियट ऑस्कर। व्हाट अबाउट जयपुर? विक्टर, इंडिया जूलियट पापा। very good, you have told Zulu earlier. विक्टर इंडिया Yes, जूलियट पापा, गुड वन, सही है। देन दिल्ली का अभी तो आपने बताया था। VI। VIDP, देयर इज एक्सेप्शन, VIDP, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगरा। एनी अदर स्टेशन कैन आल्सो मेक इंडिया। अ ट्राई। आगरा, गो अहेड, विक्टर इंडिया विक्टर इंडिया अल्फा गोल्फ। अल्फा गोल्फ, डन। ग्वालियर, ये
विक्टर इंडिया गोल्फ अल्फा। अल्फा, गुड वन। लखनऊ, के विक्टर इंडिया लीमा किलो। किलो किलो। डन। व्हाट अबाउट कानपुर? कानपुर है कहाँ से? अच्छा, कानपुर के ए। अच्छा, विक्टर इंडिया किलो अल्फा। वेरी गुड। तो कहीं कहीं पे आपको 2 लेटर कोड दिखाई दिया। इट मीन्स ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे वीओआर स्टेशन लगाया हुआ नहीं है। ठीक है, इस पे ये सिर्फ एक एयरपोर्ट है, यहाँ पे वीओआर स्टेशन लगाया हुआ नहीं था, तो इसका लेटर कोड 2 ही आया। देखो, तो इस केस में जहां पे 2 नाम रहे, एज इट इज इसको चिपका दो, VIK। डन। खजुराहो, विक्टर इंडिया किलो जूलियट। दिस इज नॉट इंडिया। कौन सा मुंबई FIR है? हैव अ लुक अच्छे से, अच्छा, आराम से। हाँ हाँ। नीचे है आपका, हम्म। ये हो गया साउथ। साउथ वाला हो गया तो आपका ओ विक्टर ऑस्कर किलो ना, जूलियट। साउथ नहीं है, साउथ नहीं है, ये है मुंबई VEKO, FIR। अल्फा। VE भी नहीं। VAKO, VAKO, नहीं, ओ नहीं है, KKJ है उसका लेटर कोड। KJ, ओके ओके, KJ ओके। क्या अभी होगा? आपने बताया था, हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बताया था? अभी आपने बताया था ना, ग्रीन से ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, यही बोले थे ना? नहीं, दिल्ली FIR ये है और ये मुंबई FIR है। अच्छा, ऐसा हम मुंबई लोग मैप वेस्ट में, इंडीज। हाँ, मैप में नॉर्थ साउथ करके नहीं FIR देखते हैं, चार्ट में देखेंगे कि ग्रीन कलर का जो लाइन है ये FIR बाउंड्री है। हम लोग आगे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स में पढ़ेंगे, तो यहीं पे लिखा रहता है कि कौन से FIR का ये पार्ट है। ठीक है, चलो बताओ अब, मुंबई FIR का लेटर कोड क्या होता है? अल्फा। अल्फा, वेरी गुड। तो बताओ खजुराहो का। वेक्टर अल्फा हाँ किलो हाँ जूलियट। हाँ, वेरी गुड, अमेजिंग, दिस इज द आंसर। व्हाट टू वरी, व्हाट अबाउट जबलपुर? जबलपुर है कहाँ से? जेजेपी हो गया तो विक्टर अल्फा जूलियट ब्रावो। ब्रावो, डन। भोपाल? भोपाल कहाँ से? भोपाल को लगाइए PPL। तो वेक्टर अल्फा ब्रावो लीमा। हाँ, इन रियल भोपाल का है विक्टर अल्फा ब्रावो पापा, लीमा नहीं है। ठीक है, देन इंदौर। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे मुझे पता नहीं है कि जैसे किसके लिए फर्स्ट लेटर है, किसके लिए थर्ड लेटर है। अगर कोई मेरे डोंट इन वरी, केस डोंट अभी वरी। अभी मेरे से कोई पूछा, कोई भी अगर मान के चलिए भाई में ही पूछा ऐसे करके, तो मैं फर्स्ट और थर्ड लेटर हम्म, बोलूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा? जैसे भोपाल के लिए अभी आपने बोला कि बीपी नहीं बोलना, नहीं नहीं, अगर वेट मैं वेट BL बोलूंगा वेट तो वेट गलत वेट, नहीं होगा ना? पहले पहले चार्ट एक आने दो, पहले एक चार्ट कंप्लीट होने दो, आई विल टेल यू, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, एक एक मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाने दो, आई विल टेल यू, डोंट बी वरीड। ठीक है, डोंट बी वरीड। चलो इंदौर का बताओ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं रिटर्न होऊंगा। मैंने कहा ना कि आज तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपको भी नहीं आएगी। ठीक है, इंदौर का। इंदौर में बोला लगे सर, देखिए ना। अच्छा, IID हाँ, वेक्टर अल्फा इंडिया डेल्टा। वेरी गुड। उदयपुर? कहाँ से? उदयपुर देखो, UUD वेक्टर अल्फा क्या था यू से? यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म और डेल्टा। हाँ, प्रतापगढ़? कहाँ से पढ़ता हूँ? PRA मतलब वेक्टर अल्फा पापा अल्फा। वेरी गुड। अहमदाबाद? कहाँ है सर अहमदाबाद? AE तो हम्म विक्टर अल्फा
अल्फा इको Alpha Hotel. In reality, this is Alpha Hotel. Alpha Hotel. Victor Alpha Alpha Hotel. ठीक है. Then भावनगर. भावनगर. कहाँ है भावनगर शुरू करके लगाई है? भावनगर. भावनगर. BVR मतलब विक्टर अल्फा ब्रेवो रोमियो. Very good. Victor Alpha Bravo Romeo. Done. वडोदरा. हाँ बड़ोदरा का है QQZ QQZ विक्टर अल्फा से क्यों मैं भूल जाता हूँ. विक्टर अल्फा विक्टर अल्फा आगे. विवेक जुलू कीबेक. जुलू कीबेक जूलू. वेरी गुड. मुंबई औरंगाबाद और नागपुर, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है. राइट. पुणे का. पुणे PUN मतलब इसमें आ गया वेस्टर्न रीजन में ही तो. वेक्टर अल्फा पापा नवंबर. BAPO. In real, this is Victor Alpha. BAPO. हाँ. In real, this is Victor Alpha Papa Oscar. Oscar. Now tell me. Now tell me. एक दिल्ली का था विक्टर इंडिया डेल्टा पापा. भोपाल का है विक्टर अल्फा ब्रेवो पापा. अहमदाबाद का AH और पुणे का VAPO. जब आप 4 बार 5 बार, जो मैं आपको डेली अर्ली क्लासेस में फ्लाइट प्लान का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब आप 4 बार 5 बार इसी चीज को लिखोगे ना, ट्रस्ट मी, आप भूलोगे ही नहीं. बाकी बताओ, इतने 20 एयरपोर्ट्स में से 4 एक्सेप्शन निकले. राइट. वो भी माइनर से. ऐसा तो नहीं है कि पूरा रूल ब्लेंडर हो गया, थोड़ा सा करेक्शन है. राइट. तो आपको ये याद रहेगा, कभी नहीं. और सपोज आपसे पार्ट 2 में डिस्कशन में पूछ दिया कि ऐसा क्यों होता है, तो एज आई सेड, इसे रूल तो यही कहता है कि हम किसी भी VOR स्टेशन कोड का या किसी भी सिटी नेम का फर्स्ट एंड थर्ड लेटर यूज करेंगे, लेकिन किसी किसी एयरपोर्ट पे ये रूल ब्रेक हुआ है. तो हमको बाय द प्रैक्टिस ये याद रखना पड़ता है कि किस एयरपोर्ट का क्या लेटर कोड है. अदरवाइज when we are flying the aircraft or when we are making the answer of RT, chart is always available with us. ठीक है. यह हाइपोथेटिकल चार्ट है और वहां पे आपके पास ई चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट रहता है एयरक्राफ्ट में. तो चार्ट इज ऑलवेज देयर विथ अस. और हर एक सिटी के पास उस सिटी का नाम लिखा होता है. देखो, अहमदाबाद, भोपाल, ठीक है, पुणे. तो अगर लिखने में सपोज मैंने ये भी लिख दिया VAPN, लेकिन बोलूंगा तो पुणे ही, तो कहां पे प्रॉब्लम हुई? क्या पुणे छोड़ के कोई दूसरा सिटी हो जाएगा? चाहे मैं VAPU लिख दूं या VAPN लिख दूं, बोलूंगा क्या? पुणे. डन. पुणे टावर, पुणे ग्राउंड, पुणे अप्रोच, पुणे कंट्रोल, इसी तरह से हम लोग बोलेंगे ना. ऐसा तो नहीं बोलेंगे VAPU टावर. ये तो हम बस लिख रहे हैं. क्लियर? तो मेरा एक और क्वेश्चन. हाँ हाँ, वेरी गुड. जैसे दिल्ली का, जैसे आपने बोला फर्स्ट और थर्ड लेटर लो जो भी है, तो आपको कैसे पता चला कि उसका दिल्ली का VIDP होता है? कहीं तो लिखा होगा. गूगल 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 करके देख लो कि VIDP है या क्या है. ओके, जस्ट ए सेकेंड, आई विल शो यू दैट आल्सो. अहमदाबाद, चलो अहमदाबाद इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर या अहमदाबाद इकाओ एयरपोर्ट कोड. ठीक है. क्या लिखा है? VAAH. कहीं पे इस टाइप का लिस्ट जो आप पूछ रहे हो वो नहीं दिया होता है. क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट जो एक्चुअल में ऑपरेट होते हैं, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है कि वो चार्ट पब्लिश करता है और वो एयरक्राफ्ट को एक्सेसिबल होता है, हमको नहीं.
क्योंकि एयरक्राफ्ट में जिप्सन एक कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में चार्ट पब्लिश करती है। तो जिप्सन नाम की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स बनाती है एयरक्राफ्ट के लिए और एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है। तो जो पैसा देगा उसको बताएगी, जो नहीं देगा उसको नहीं पता चलेगा। तो हम लोग रूल पढ़ते हैं कि नाम ऐसे रखा जाएगा, एंड बाय द प्रैक्टिस वी केम टू नो कि हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है, हाँ, डोंट बी वरीड, ठीक है, डोंट बी वरीड, इवन डोंट बी अ लिटिल डिमोरलाइज ऑल्सो। डेली हम लोग हाँ प्रैक्टिस एक करेंगे, सेकेंड आपको अंकुर, प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ हाँ, गूगल पे वडोदरा का भी अलग है थोड़ा। हाँ अलग है ना, क्या है? वडोदरा ये गूगल पे अभी मैंने देखा, VAVO विक्टर अल्फा ब्रावो ऑस्कर। हाँ बट मीटिंग तो क्लोज नहीं हुआ ना, नहीं, बट इन द एग्जामिनेशन एज पर द चार्ट्स वट एवर इज गिवन टू अस, इफ वी नोज, ठीक है, इफ वी नोज द एक्चुअल नेम वी कैन यूज, अदरवाइज वी विल गो एज पर द चार्ट गिवन टू अस। अगर बड़ोदरा का QQZ लिखा है तो अपना लेटर कोड यही बनेगा, विक्टर अल्फा क्यूबेक जुलू। ठीक है, ओके ओके। हाउएवर, चलो उसके अलावा देखो, अभी क्या है, ये जो चार्ट हम यूज कर रहे हैं, इस चार्ट में कॉर्नर पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हाइपोथेटिकल रूट चार्ट। हाइपोथेटिकल मतलब मन ग्रंथ, ठीक है, या फिर दिस डज नॉट मीट्स टू रियलिटी। ये चार्ट आपको एग्जाम में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस चार्ट को फॉलो करके आप जहाज उड़ाओगे। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से आपको जो भी एयरपोर्ट कोड लगता है आप उसको लिखो। बाय द वे एज आई टोल्ड, आपको एयरपोर्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, बस डिकोड करना है एग्जाम में। और सपोज आपको एग्जाम में एक बार को अटक गए या आपको कंफ्यूजन हुआ कि इसमें क्या लिखूंगा, या क्या पता ये दिल्ली एयरपोर्ट है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा टूल क्या है, एक तो हमको एग्जामिनर ने पहले ही कंफर्म कर दिया कि हमारा चार्ट कौन सा है, दूसरा अगर वहां से कोई रूट निकलता है तो उससे हम क्रॉस चेक कर लेंगे ना कि ये दिल्ली एयरपोर्ट ही है। डन? ठीक है सर। डन। सो इट विल कम टू यू, डोंट वरी। 2-4 दिन, टोटल 8 चार्ट है ना, 7 डेज स्पेंड करो। आपको कभी आपको अगर उसके बाद प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो। ठीक है, आप देखो दोबारा इस पे डाउट पूछोगे ही नहीं। ठीक है, इट विल कम ऑटोमेटिकली। डेली एक चार्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से आप पूछना ही बंद कर दोगे। हाँ, समटाइम्स इट विल हैपन कि आज जैसे मैंने भोपाल का एक्सेप्शन बताया, अहमदाबाद का एक्सेप्शन बताया, आपको एक बार में याद नहीं रहा। डज इट ए प्रॉब्लम? नो। जब आप दोबारा से कोई मिस्टेक करोगे मैं उसको दोबारा से करेक्ट कर दूंगा, और जब आप 2 से 3 बार आपकी गलतियों को मैं ठीक करूंगा, सो इट ऑटोमेटिकली कम टू यू कि मेरे से भोपाल बार बार मिस्टेक हो जा रहा है यार, भोपाल का होगा VABP। ठीक है, आप कंटिन्यू करो, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट हमेशा ये ध्यान रखना, बाय द रूल फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ एनी एयरपोर्ट कोड व्हाट हैज नॉट बीन फॉलोड इन इंडिया, हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं किए। अगर हमको इस पे डाउट करना है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खड़ा करना पड़ेगा कि बताओ भाई आपने रूल फॉलो नहीं किया क्यों। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ देयर डिपार्टमेंट कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया ये तो वही बताएंगे। डन? यस सो सर। दैट्स ऑल अबाउट इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। ठीक है, एंड नेवर बी वरीड, हम लोग डेली एक एक चार्ट का प्रैक्टिस किया करेंगे इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर, तो आपके सारे चार्ट्स कवर हो जाएंगे। द न्यू टॉपिक फॉर यू इज फ्लाइट प्लान एंड आइटा कोड। ठीक है, नाउ हैव अ लुक ऑन फ्लाइट प्लान। सबसे पहले फ्लाइट प्लान का मतलब होता है आप इंडिया में, ठीक है, आप इंडिया में अगर आपके पास एक एयरक्राफ्ट है
तो आप अपने एयरक्राफ्ट को फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी रेंडमली फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना है तो आप अपने नियरेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपना फ्लाइट प्लान सबमिट करोगे कि कल 10:30 बजे हम दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, और वहां से आपके इस प्लान का अप्रूवल आएगा तभी आपका एयरक्राफ्ट हवा में जाएगा। ठीक है, तो जैसे गाड़ी आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कहीं जाना हो तो रेंडमली उठ के जा सकते हो, लेकिन इन एयरक्राफ्ट you cannot fly like this. You need the approval of your plan. So a flight plan is a document which specifies the information. वो कुछ इंफॉर्मेशन बताता है किसको? टू एयर ट्रैफिक सर्विसेज यूनिट। ठीक है, एटीसी बोलो या उसको एटीएस बोला जाता है, एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एयर ट्रैफिक सर्विसेज वालों को बताता है क्या? रिलेटेड टू एन इंटेंडेड फ्लाइट और पोर्शन ऑफ अ फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एक डॉक्यूमेंट है फ्लाइट प्लान जो कि एटीसी को यह बताता है कि हमारा जर्नी कहां से कहां तक होगा, या तो पूरा या फिर उसका कोई आधा पार्ट। कि सपोज एक दिन में आपको 4 फ्लाइट करनी है तो एक बार में आप 2 का इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। जब 2 आपका सेक्टर पूरा हो जाएगा तब जाके आप तीसरे फ्लाइट प्लान का अप्रूवल ले लो, लाइक दिस। तो या तो पूरे फ्लाइट प्लान या अ पोर्शन ऑफ दैट फ्लाइट प्लान। किसका? आपके एयरक्राफ्ट का। तो फ्लाइट प्लान इज ए डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन टू एयर ट्रैफिक सर्किट related to an intended flight or portion of a flight. Clear? समझ में आ रहा है ये डेफिनेशन कि फ्लाइट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन देता है किसको? एयर ट्रैफिक सर्विसेज को। किस चीज के रिगार्डिंग? आपके फ्लाइट के रिगार्डिंग, कि आप कहां से कहां तक उड़ाना चाहते हो, कहां से कहां तक आपको जहाज चलाने का मन है। अगला, डिटेल्ड रूल्स रिगार्डिंग द सबमिशन, कि फ्लाइट प्लान आप कैसे सबमिट करोगे, उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, कैसे फ्लाइट प्लान कंप्लीट करके इंफॉर्म करोगे, और अगर आपको रास्ते में फ्लाइट प्लान चेंज करने की जरूरत पड़ी तो कैसे चेंज करोगे, या फिर अगर आपको फ्लाइट प्लान क्लोज करना है कि चलो भाई अब नहीं उड़ाऊंगा, तो आप कैसे उसको डिसमिस करोगे। ये सब लिखा हुआ है इकाओ एनेक्सर्स 2 में, रूल्स ऑफ द एयर। ठीक है, इकाओ एनेक्सर 2 होता है रूल्स ऑफ द एयर। वहां पे लिखा हुआ है कि फ्लाइट प्लान कैसे सबमिट करना है, किसको सबमिट करना है, कंटेंट क्या क्या रहेंगे, कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कैसे चेंजेस या मॉडिफिकेशन को आप इंटीमेट करोगे आधे रास्ते में, कैसे क्लोजिंग या कैंसिलेशन को आप इंटीमेट करोगे। ये सब लिखा हुआ है रूल्स ऑफ द एयर में। डन। A flight plan may be filed या submitted as a written document or an electronic document or in the mode established by the authority of a state. जिस कंट्री में आप अपना फ्लाइट उड़ाओगे वहां के अथॉरिटी ने, वहां के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो रूल बनाया है उसको फॉलो करते हुए फ्लाइट प्लान आप सबमिट करो। लाइक इन इंडिया बिफोर 2015-16 फ्लाइट प्लान हार्ड कॉपी में सबमिट होते थे। ठीक है, फॉर्म रहता था, फॉर्म भरो, एयर ट्रैफिक सर्विसेज को इंटीमेट कर दो। उसके बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज होने लगा। क्या? हार्ड कॉपी में फॉर्म भरो, स्कैन करके पीडीएफ बना लो और एटीसी वालों को मेल कर दो, प्लस उसके अप्रूवल लेने के लिए आप कॉल करो। ठीक है, एफआईसी ऑफिस बोलते हैं उसको, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस ऑफिस। उसको कॉल करके पूछोगे कि क्या सर मेरा फ्लाइट अप्रूव हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारा इंडिया और डिजिटल हुआ। हमने वेबसाइट्स बनाए, स्काई वेक्टर, मुझे एक ही वेबसाइट का नाम पता है, स्काई वेक्टर, और भी 2-3 वेबसाइट हैं जहां पे जाके फ्लाइट प्लान या एयरक्राफ्ट का ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लेता है। और अगर आपको फ्लाइट प्लान इनिशिएट करना है तो 2-3-4 फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा, उसमें डेटा एंट्री कर दो,
और वहां पे सबमिट कर दो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस ऑफिस को और वो आपका फ्लाइट प्लान अप्रूव कर देंगे। तो किस देश में फ्लाइट प्लान कैसे सबमिट होगा ये फ्रीली छोड़ दिया गया है उस देश के अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे। जो देश जितना विकसित है वो उतना ज्यादा एडवांस फ्लाइट प्लान को सबमिट करेगा, यूज करेगा। क्लियर? तो रिटन डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है या ई फ्लाइट प्लान सबमिशन है, ये डिपेंड करेगा उस अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इवन इन डीजीसीए सबसे पहले हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम करते थे, इट वाज गोइंग इन हार्ड कॉपी। उसके बाद क्या हुआ कि हार्ड कॉपी में अप्लाई करो, स्कैन करके ईमेल करो, फिर चेंज हुआ, वेबसाइट बना दिया गया, वहां पे ऑनलाइन एंट्री कर दो। सो इट वाज लाइक दैट ओनली। अब आते हैं फ्लाइट प्लान में होता क्या क्या है। फ्लाइट प्लान का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट साइड ऑफ द पेज। दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फ्लाइट प्लान। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जस्ट हैव अ लुक। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, सबसे टॉप ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, एड्रेसी डेजिग्नेटर। हम लोग जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में जो हमको फ्लाइट प्लान पूछता है हम लोग उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। रियल वाले फ्लाइट प्लान को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जामिनेशन पर्पज से उसको बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। एज एन एएमई कैंडिडेट आपसे फ्लाइट प्लान के मुद्दे पे बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाउएवर आई विल प्रोवाइड यू दैट मच ऑफ मटेरियल कि आप अगर पढ़ना चाहो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर के सेक्शन को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर का डिटेल फिल होता है कि कौन से ऑपरेटर पे को एयरक्राफ्ट बिलोंग करता है। नेक्स्ट सबसे पहला आता है फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, विक्टर टैंगो रोमियो इको सिएरा, या फिर फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन या एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन आपका या तो आपका कॉल साइन रहेगा, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन एंड नेशनलिटी मार्क्स, और दैट कैन बी एन आइटा कोड और फ्लाइट नंबर ऑफ एन एयरलाइन। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी, ठीक है। तो किसी भी एयरक्राफ्ट को दो टाइप से कॉल कर सकते हो, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर उसके फ्लाइट आईडी से। फ्लाइट आईडी क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं इमीडिएटली। देन फ्लाइट रूल, आई वी वाई और जेड, IFR VFR यंकी और जुलू, ठीक है। देन आता है आपका टाइप ऑफ फ्लाइट। टाइप ऑफ फ्लाइट यहाँ पे जो है ये आपका ऑपरेशन टाइप है, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, जनरल एविएशन, मेडिकल, ठीक है, लाइक दिस, ट्रेनिंग फ्लाइट, टाइप ऑफ फ्लाइट में। देन इट इज नंबर, नंबर मीन्स सेक्टर, कितने सेक्टर आप जाओगे, 1 2 3। देन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट का मॉडल क्या है, ठीक है, किस मॉडल का आपका एयरक्राफ्ट है, बोइंग 737, एयरबस 320, ठीक है, लिगेसी 650, गल्फ स्ट्रीम G5, लाइक दिस, चैलेंजर 604, लाइक दिस। सो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मीन्स मॉडल ऑफ योर एयरक्राफ्ट। वेट टर्बुलेंस, ये भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लाइट, मॉडरेट और हैवी। वेट टर्बुलेंस का मतलब होता है कि अगर आप अपने एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करोगे तो वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करता है। देन इट इज कमिंग अबाउट इक्विपमेंट, आपके एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड, ILS कैटेगरी 2, ILS कैटेगरी 3, VOR, PBN, GPS, RVSM, ये सब आते हैं टाइप ऑफ इक्विपमेंट में। फिर आता है आपका डिपार्चर एरोड्रोम, कहां से टेक ऑफ करोगे, VIDP, देखो वहां पे लोकेशन डिजिग्नेटर के फॉर्मेट में फिल होता है। फिर डिपार्चर टाइम, कितने बजे डिपार्ट करोगे, आपका स्टैंडर्ड क्रूजिंग स्पीड क्या रहेगा, 500 नॉट्स, किस लेवल पे फ्लाई करोगे, किस अल्टीट्यूड पे आप क्रूज करोगे वो लिखो। रूट, कौन से रूट को फॉलो करते हुए आप अपने फ्लाइट को कंप्लीट करोगे वो लिखो। डेस्टिनेशन एरोड्रोम, कहां जाओगे, ये भी इन द फॉर्मेट ऑफ लोकेशन डिजिग्नेटर ओनली, VOBL, बैंगलोर। देन टोटल EET,
टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम, आपका एयरक्राफ्ट में एक बार फ्यूल भर देंगे तो टोटल कितने घंटे फ्लाई कर सकता है? 4 घंटे। फर्स्ट अल्टरनेट, सेकंड अल्टरनेट, अगर आप किसी रीजन से अपने डेस्टिनेशन पे लैंड नहीं कर पाए तो अल्टरनेटिवली आप कहां जाना चाहोगे? बेंगलोर या मैंगलोर, लाइक दिस। एनी अदर इंफॉर्मेशन, आपके एयरक्राफ्ट में मेडिकल पैसेंजर है, आप कोई लाइव ऑर्गन कैरी कर रहे हो, आपके एयरक्राफ्ट में वीआईपी बैठे हुए हैं, आपके एयरक्राफ्ट में किसी दूसरे देश के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, डेलीगेट्स मीन्स राजदूत या फिर दूसरे देश के मंत्री, नेता, ठीक है? तो ये सब आपके फ्लाइट प्लान के इंफॉर्मेशन है। करेक्शन, एक चीज को ठीक करो, टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम जो है ये होता है कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपने कितने आवर्स का जर्नी प्लान किया है, कि अगर आप दिल्ली से बेंगलोर जाओगे तो आपको कितना घंटा लगेगा टोटल टाइम, तो आपने सोचा कि 3 घंटा लगेगा। इंड्योरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके एयरक्राफ्ट में फ्यूल हम भर दें तो टोटल कितने आवर्स तक वो फ्लाई कर सकता है। क्लियर? सो टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम इज योर एस्टिमेटेड टाइम, कि आपके हिसाब से आप कितने देर हवा में रहोगे। सो दैट कम्स इन टोटल एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम। एंड्योरेंस मींस आपका एयरक्राफ्ट फ्यूल फुल होने पे कितना देर हवा में फ्लाई करेगा। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड, ठीक है? तो दीज आर द एसेंशियल, ये जो आपने नंबर 3 से नंबर 19 तक पैरामीटर देखे, दीज आर द एसेंशियल पैरामीटर्स। और हमको आरटी एग्जाम में इतने पैरामीटर्स से ही मतलब रहता है। उसके अलावा आपके एयरक्राफ्ट में वीएचएफ, यूएचएफ, ईएलटी है कि नहीं, आपके एयरक्राफ्ट में लाइव सेवियर जैकेट्स हैं कि नहीं, अगर लाइव सर्वाइवल इक्विपमेंट है तो आप किस रीजन में सर्वाइव कर सकते हो, क्या पोलर रीजन ठंडे प्रदेश में आपका पैसेंजर सर्वाइव करेगा, डेजर्ट में कर सकता है, मेरीटाइम पानी में कर सकता है, जंगल में कर सकता है कि नहीं, आपके एयरक्राफ्ट में जो लाइव वेस्ट है वो कौन से कलर का है, ठीक है, जैकेट का कलर कौन सा है। उसके बाद अगर आपके क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट में, आपके एयरक्राफ्ट का कलर या मार्किंग क्या है, आपके एयरक्राफ्ट में जो लाइफ राफ्ट है वो कौन से कलर का है, किस कलर का है, प्लस उसमें सर्वाइवल इक्विपमेंट में क्या क्या है और कितने कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर को वो कवर कर सकता है। 200 पैसेंजर हैं आपके एयरक्राफ्ट में, इतना बड़ा लाइफ राफ्ट मीन्स नाव, तो इतना बड़ा नाव तो नहीं है कि 200 पैसेंजर लेके जा सकते हो आप, तो 50-60 पैसेंजर को आप इसमें कवर कर सकते हो, लाइक दिस। और फ्लाइट प्लान सबमिट करना ड्यूटी होता है हमेशा पायलट इन कमांड का। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कहां होता है? यस, ओवरऑल इट इज द ड्यूटी ऑफ पायलट इन कमांड, बट एयरलाइनर्स में पायलट्स को एज अ मशीन यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आपको कंटिन्यूअस बार बार एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने पड़ते हैं और डेली आपको फ्लाइट प्लान भरना पड़ेगा तो पायलट को आप कितना लोड दोगे, वो परेशान हो जाएगा। उस केस में आप अपने कंपनी में रख लेते हो एक फ्लाइट डिस्पैचर, जिसको फ्लाइट प्लान सबमिट करने आता है, फ्लाइट प्लान का अप्रूवल लेने आता है। क्लियर? तो ओवरऑल दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट, बट उसके अंदर में डिस्पैच टीम रहती है और वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ सर हम फ्लाइट प्लान का अप्रूवल लाके आपको दे देंगे, आप बस हमारा जहाज फ्लाई कर देना। क्लियर? सो आउट ऑफ दीज पैरामीटर्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास सिर्फ 13 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? पहला, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, जो मैं आपका कॉल साइन, आपका नाम लेता हूं, विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, फ्लाइट लेवल, किस लेवल पे आप क्रूज करना चाहते हो, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट आप किस अल्टीट्यूड पे करना चाहते हो। तीसरा, वेक टर्बुलेंस, अगर आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन हो जाए तो कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर को वो डिस्टर्ब करेगा। चौथा, डिपार्चर एरोड्रोम, कहां से टेक ऑफ करोगे, डिपार्चर टाइम, किस टाइम टेक ऑफ करोगे, फ्लाइट रूल कौन सा रहेगा, आईएफआर, वीएफआर, यांकी और जुलू। अराइवल एयरपोर्ट कौन सा है, आप जहां से डिपार्ट करोगे तो जाओगे किधर, टाइप ऑफ फ्लाइट क्या है, मींस ऑपरेशन का टाइप कौन सा है, शेड्यूल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर हो, नॉन शेड्यूल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर हो, ट्रेनिंग फ्लाइट देते हो,
मेडिकल फ्लाइट देते हो, कौन से टाइप के ऑपरेटर हो आप। उसके बाद आता है अल्टरनेट एरोड्रोम, कि अगर आप अपने डेस्टिनेशन एरोड्रोम पे किसी भी रीजन से लैंड नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास। रूट, दिल्ली से बेंगलोर जाओगे, कौन से रूट को फॉलो करते हुए जाओगे। हम लोग भी जनरली बोलते हैं ना कि चलो अगर हम बिहार से कोलकाता जाएंगे, सो विल फॉलो द NH-37। विल अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे लाइक दैट, तो विल फॉलो द NH-7, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लाइक दैट वी आर सेइंग। सिमिलरली, if we are going from Delhi to Bangalore, which route we are following? तो उस रूट का नाम बताओ। देन एयर इक्विपमेंट, आपके एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, स्पेशल इक्विपमेंट क्या क्या हैं, ILS का कौन सा कैटेगरी है आपके एयरक्राफ्ट में। उसके बाद आता है एयरक्राफ्ट टाइप, कि आपके एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर क्या है, प्लस एनी अदर इंफॉर्मेशन, कुछ एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि ATC का ध्यान आपके तरफ खींचे और एक भीड़ भाड़ जगह में आपको प्रायोरिटी मिले। इसके लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो कि हमारे एयरक्राफ्ट में मेडिकल पैसेंजर है जी, आई नीड प्रायोरिटी डिपार्चर। ठीक है। सो दीज 13 इंफॉर्मेशंस आर द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। डोंट बी वरीड, आई विल पुट यू इन वन मोर ट्रबल। ठीक है। हमारे क्लास का 3 अलग रूल है, जो कि जनरली कहीं होता होगा, आई डोंट से कि नहीं होता है, बट 3 रूल मेरे क्लासरूम का है। पहला, डेली आप जब भी मिलोगे रीडेबिलिटी चेक करोगे। दूसरा, डेली हम लोग एक एक चार्ट का एयरपोर्ट कोड फाइंड आउट करके उसका नाम लिखना सीखेंगे। तीसरा, ये जो फ्लाइट प्लान अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें फ्लाइट प्लान मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप बताओ आपको कहां से कहां तक एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है, और ये 13 पैरामीटर्स स्टूडेंट को देने होते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन पेपर हटा के आंख बंद करके मेरे को फ्लाइट प्लान बताओ। नो, आई ऑलवेज सजेस्ट कि इफ यू स्टक समवेयर, टेक द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको स्टार्टिंग में 13 पैरामीटर्स याद नहीं है, कोई बात नहीं, नोटबुक उठाओ जहां पे आपने ये सब नोट किया है, वहां से देख के बताओ, तब तो आप बता पाओगे। तो शुरू के 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन मेरे को यहां से देख के आप बताओगे कि आपके हिसाब से आपका फ्लाइट कहां से कहां तक जाना चाहिए। ठीक है। 8 दिन, 10 दिन जब आप बता लोगे, ट्रस्ट मी, आपको दोबारा से नोट की तरफ झांक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो दिस वाज द regular criteria of my classroom from where I can ensure कि you knows everything। फ्लाइट प्लान समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर वो नहीं समझोगे तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन रह ही जाएगा लास्ट तक। तो फ्लाइट प्लान को इतने अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन पता हो जाएगा कि क्वेश्चन ये क्या पूछ सकता है मेरे से। ठीक है। उस लेवल की जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपका रिजल्ट इंश्योर होता है। ठीक है। सो विल हैव अ लुक ऑन वन ओरिजिनल फ्लाइट प्लान, जो कि एक रियल एयरक्राफ्ट को भरा गया है। यू कैन सी द फॉर्मेट इज सेम, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई विल टेक फ्यू मिनट्स ऑफ गैप ब्रेक। विल मीट एट 2235। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ये फ्लाइट प्लान। ठीक है। तब तक के लिए आप अगर खुद से दिमाग लगा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पता करो कि क्या क्या लिखा हुआ है। डन। विल अगेन ट्राई एक्सप्लेनिंग एट 2235। Class will be on only. If you want, you can take a break or you can just have a look on the screen. देख के समझने की कोशिश करो कि इस फ्लाइट प्लान में क्या क्या लिखा गया है। दिस इज द ओरिजिनल फ्लाइट प्लान ऑफ एन एयरक्राफ्ट।
Okay, is everyone available? Yes. Yes, no one. ठीक Yes, sir. ठीक. Now we'll explain one by one. फिर editing पे click हो गया. Just a second. We'll explain flight plan one by one, but again and again I'll tell you, किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा डीप में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अगर आप बहुत ज्यादा डीप में सोचोगे, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, बट आगे की जिम्मेदारी आपकी कि आपका नर्वस सिस्टम उतना लोड ले पाएगा कि नहीं. ठीक है, चलो. सबसे पहला, Victor Tango Sierra Mike Sierra is the identification of this aircraft, right? As you can clearly see here, Victor Tango Sierra Mike Sierra is the identification of this aircraft. Next, flight rule IFR, type of flight N, non-scheduled. कितने सेक्टर फ्लाई करेगा? एक. टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट BE-20, B-200. वेक टर्बुलेंस L, लाइट, लो, जो आप बोलना चाहो. वेक टर्बुलेंस लाइट है वे या वेक टर्बुलेंस लो है. इमीडिएटली आफ्टर दिस फ्लाइट प्लान हम वेक टर्बुलेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा. इक्विपमेंट SBGFRWY. अभी बस आप ऐसा मान के चलो कि इक्विपमेंट का कोड लिखा रहता है इसमें. किस कोड का क्या मीनिंग है हम आपको बताएंगे. फिलहाल के लिए एग्जाम में इक्विपमेंट में हमेशा लिखा हुआ आएगा स्टैंडर्ड. मींस नॉर्मली एक एयरक्राफ्ट को जितने इक्विपमेंट चाहिए आपके एयरक्राफ्ट में उतने अवेलेबल है. आपको डिटेल में जानना है कि सर हमको सारे लेटर कोड चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किसका क्या मीनिंग है. डिपार्चर एरोड्रोम VOMM अभी हमने पढ़ा. इकोलोकेशन डेजिग्नेटर हमने कल भी देखा था. V मींस इंडिया का एयरपोर्ट, O मींस सदर्न रीजन, MMV is the VR code for Chennai airport. So VOMM is the airport Chennai. Departure time 0645, सुबह 6:45. But that is not सुबह 6:45. In flight plan, the time is written in UTC, not in IST. ठीक है? So what will be the time as per Indian standard? If UTC is 0645, Indian standard time will be +5 and 30 hours. ठीक है, 6:45 में 5.5 घंटा ऐड कर दोगे तो आपको इंडियन टाइम मिलेगा. हम लोग उसको देखेंगे बाद में. बट डिपार्चर टाइम इज रिटेन हेयर. देन क्रूजिंग स्पीड 297 नॉट्स, 300 के स्पीड से. लेवल, किस लेवल पे, किस अल्टीट्यूड पे आप फ्लाई करना चाहते हो? फ्लाइट लेवल 200, 20,000 फीट. रूट, किस रूट को फॉलो करोगे? MMV विस्की 117, चेन्नई से विस्की 117. उसके बाद BIA, बेंगलोर से डायरेक्ट BBG, HL एयरपोर्ट ऑफ बेंगलोर. तो रूट इंफॉर्मेशन के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो, फ्लाइट प्लान में रूट भी मेंशन करना पड़ता है. अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें आप बस इतना ही समझो कि फ्लाइट प्लान में मेंशन क्या क्या करना पड़ता है, किसका क्या मीनिंग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. डेस्टिनेशन एरोड्रोम VOBG. VOBG is the HL airport under Bengaluru. Then total EET, total estimated elapsed time. आपके हिसाब से आपका एयरक्राफ्ट हवा में कितने देर रहेगा? 40 मिनट. अल्टरनेट एरोड्रोम VOBL, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु. ठीक है. देन अल्टरनेट एरोड्रोम, नो अल्टरनेट, सिंगल. अदर सेकेंड अल्टरनेट आपका खाली है. अगर बेंगलोर या HL बेंगलोर में से दोनों में से कहीं नहीं उतरा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट सेक्टर का फ्लाइट है. लॉन्ग सेक्टर रहता है तो आपको सेकेंड अल्टरनेट भी डालना पड़ेगा कि बेंगलोर नहीं जा पाए तो हैदराबाद चले जाएंगे, लाइक दिस. देन एनी अदर इंफॉर्मेशन. लुक क्या लिखा हुआ है इसमें? PBN है, B2B, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2. ये सब एक लेटर कोड है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने का कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं. क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, डोंट वरी. देन एंड्योरेंस, आपके एयरक्राफ्ट में पूरा फ्यूल भर दूं तो टोटल कितने देर फ्लाई कर सकता है? 3 घंटा 24 मिनट.
पर्सन ऑन बोर्ड, कितने पैसेंजर ऑन बोर्ड है? टोटल 2 पर्सन ऑन बोर्ड है। आपके एयरक्राफ्ट में यूएचएफ, वीएचएफ और ईएलटी है? यस है। आपका एयरक्राफ्ट सरवाइव कर सकता है किस रीजन में? एस मींस स्टैंडर्ड सरफेस रीजन या फिर मेरीटाइम, पानी में या जमीन पे हमारा एयरक्राफ्ट सरवाइव कर सकता है। पोलर में नहीं करेगा, क्रॉस लगा हुआ है। डी डेजर्ट नहीं, जंगल में नहीं। कैपेसिटी कितनी है? 4 लोगों के लिए हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। देन जो आपका लाइफ वेस्ट है, लाइफ जैकेट है, कौन से कलर का है? येलो। आपके एयरक्राफ्ट का कलर क्या है? व्हाइट, ऑरेंज एंड पर्पल एंड फिल्ड बाय द कैप्टन। हाउएवर दिस इज फिल्ड बाय देयर dispatch team, but it will be go in the name of captain only, always. So this is the standard flight plan format. ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे थोड़ा सा बताओ कि कैसे फ्लाइट प्लान फिल करते हैं, क्या फिल करते हैं, क्या होता है ये। इफ यू नीड हेल्प आई विल टेक यू देयर, बट दैट विल बी एट योर रिस्क। ठीक है, ओके, डोंट वरी, नथिंग टू वरी, इवन एवरीथिंग इज इजी। जस्ट अ सेकेंड। मैंने आपको ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स डायग्राम के ड्राइव का लिंक दिया है। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, फ्लाइट प्लान सबमिशन क्विक रेफरेंस ब्रोशर। कि फ्लाइट प्लान में किसमें क्या लिखेंगे ये सब यहाँ पे लिखा होता है, और ये चीज किसी भी पायलट को जनरली याद नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए, याद तो आपको भी नहीं रहेगा, नेवरदलेस जब पायलट को याद नहीं रहता है जो कि डेली फ्लाई करते हैं, तो आपको कहां से याद रहेगा। मैंने रैंडम ट्राई किया था, मैंने एक पायलट से पूछा था कि सर इसका मीनिंग बताओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने मना कर दिया, बोला मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी जो डाउनलोड किया था किधर गया? जस्ट ए सेकेंड, आई विल टेक यू टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट अगेन एंड इट वोंट बी वेरी टफ। लेट मी अगेन डाउनलोड दैट पार्ट, ताकि आपको रेफरेंस मैच करवाना इजी रहे, अदरवाइज that will be little confusing for you. Flight plan. Now, confirm if screen is visible. दिख रहा है आप लोगों को? ओके, फिर हमने बताया था इक्विपमेंट वाले सेक्शन में, देखो क्या लिखा हुआ है, एस बी जी एफ आर डब्ल्यू वाई। देखो इसमें जूम करके कि एस का क्या मतलब है, यहां तक देखेंगे। इसमें देखो लेटर कोड करके एक लाइन से दिया हुआ एस, यानी आपके एयरक्राफ्ट में स्टैंडर्ड वीएचएफ और आईएलएस बेस्ड सिस्टम है, देखा एस। फिर क्या आया? बी ब्रेवो, मींस आपका एयरक्राफ्ट एटलीस्ट 91 और 121 नॉट्स के इंस्ट्रूमेंट एयर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, मींस इतना धीरे आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इतना धीरे फ्लाई नहीं करते। फिर क्या आया? जी, जी का क्या मीनिंग है? ढूंढो इधर, मिलेगा। जीएनएसएस, यानी आपके एयरक्राफ्ट में जीपीएस के ऑप्शन है। जीएनएसएस मींस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सर्विसेज। उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आता है? जीपीएस, गैलीलियो, इंडिया का है गगन, जापान का है मसास एमएसएस, मित्सुबिशी सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम, चाइना का है बाइडू, रसिया का है ग्लोनस। तो अपने पास क्या जीपीएस है? फिर क्या आया? एफ,
एडीएफ है। आर, पीबीएन है आपके एयरक्राफ्ट में, अवेलेबल है। फिर आया डब्ल्यू, ढूंढो डब्ल्यू कहां है इधर। आरवीएसएम आपके एयरक्राफ्ट में है, यस, ठीक है। सो इक्विपमेंट के ये जो लिस्ट है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखो, ये आपको अपने एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स बताओ, ठीक है। और लेटर कोड से बताते हैं क्योंकि ऑप्शन कम है, आपको अगर पूरा लिखना पड़ेगा तो आप तो भर दोगे पूरा का पूरा सेक्शन, इसलिए इसको कोड वर्ड में सिर्फ लिख दिया जाता है। उस कोड का क्या मीनिंग है, एटीसी को ये चार्ट अवेलेबल रहता है, उनको ये पता रहता है, उनको कंफ्यूजन नहीं होती है। पायलट्स को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता है, डिस्पैचर को तो रटा हुआ होता है, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, पीबीएन, आपके एयरक्राफ्ट में पीबीएन है, यस। फिर क्या है लेटर कोड B2, B2 का क्या मतलब है देखेंगे इधर। B2 मींस आपके एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर 1090 हर्ट्ज पे आउट करेगा, यानी आपके एयरक्राफ्ट में ADS-B आउट है, ठीक है। फिर है B3, चलो B3 क्या है, इधर गया B3, इधर है, आपके एयरक्राफ्ट में DME है। फिर क्या है B4, VOR और DME दोनों सिंक में काम करता है, मींस आपके एयरक्राफ्ट में AHRS सिस्टम है, आर्टिफिशियल हॉराइजन रेफरेंस सिस्टम है। फिर क्या है C2, C2 क्या कहता है, GNSS, यस, आपके एयरक्राफ्ट में GPS सिस्टम ऑलरेडी है। C3, DME, VOR या IRU मींस इनर्शियल रेफरेंस यूनिट, INS IRS जो हमने पढ़ा था, वो भी अवेलेबल है क्या, हाँ है। फिर क्या है, आरनेव की फैसिलिटी आपके एयरक्राफ्ट में है। सो ओवरऑल यू कैन जस्ट सी कि फ्लाइट प्लान के जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, ये आपको इस ब्राउज़र में अवेलेबल मिलेगा। इसको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और एनी अदर इंफॉर्मेशन में आप देखो, DOF, DOF का क्या मतलब होता है, इधर देखो, डेट ऑफ फ्लाइट 23/10/2022, 23 क्या है, ईयर, मंथ अक्टूबर, डेट 22 अक्टूबर 2023 को ये फ्लाइट हुआ था। रजिस्ट्रेशन कोड है विक्टर टैंगो सियरा माइक सिया, इसके ऑपरेटर है एम्पायर एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। दिस वाज गिवन इन एनी अदर इंफॉर्मेशन। रिमार्क, कुछ रिमार्क है क्या आरए में, नो, नो रिमार्क्स। सो दिस इज द फ्लाइट प्लान फिलिंग फॉर्मेट। हमको बस एसेंशियल 13 इंफॉर्मेशन याद होने चाहिए, इसके अलावा फ्लाइट प्लान में क्या होता है नहीं होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। तो आपको कभी पढ़ने का मन करे कि नहीं मुझे फ्लाइट प्लान जानना ही जानना है, पायलट के लेवल जितना जानना है, तो मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जाओ पता लगाओ। कंफ्यूजन हो आप मेरे से 1 to 1 पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस क्लास में एक्सप्लेन करना सिंपल, वो टाइम टेकिंग है, वर्थ नहीं है, उसको एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको कभी। सो होप आई एम क्लियर फॉर दिस फ्लाइट प्लान सेगमेंट। आपको समझ आया कि फ्लाइट प्लान का फॉर्मेट क्या है और कैसे फिल करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये 13 पैरामीटर्स याद होने चाहिए, इसके अलावा हमको किसी भी पैरामीटर से कोई मतलब नहीं। हाँ, आउट ऑफ दिस 13 इसमें कन्नी नहीं काटना, ऐसा नहीं कि सर 8-9 याद हो तो चलेगा, नहीं, 13 के 13 याद होने चाहिए। डन। कैसे याद होंगे ये मेरे पे छोड़ दो, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। डन। नाउ नेक्स्ट आई हैव टोल्ड आई विल एक्सप्लेन the aircraft identification कि other than your registration number and nationality marks आपके एयरक्राफ्ट को कितने तरीके से बुलाया जा सकता है। उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा वेक टर्बुलेंस कि वेक टर्बुलेंस क्या होता है। वेक टर्बुलेंस का मतलब होता है जब आप अपने एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करोगे तो वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करता है। सपोज आप एप्रॉन पे खड़े हो और आपके एयरक्राफ्ट के इमीडिएट पीछे कोई छोटा सा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, सेस्ना 172 टाइप, ठीक है, और आपका एयरक्राफ्ट है एयरबस 350। तो जब आप इस एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करोगे तो ये सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट यहीं से टेक ऑफ कर जाएगा, एप्रॉन से ही। तो एटीसी वाला बोलेगा कि वाह, उसके पायलट ही बोलेंगे बहुत अच्छे, तुमने तो मेरा पैसा बचा दिया, रनवे तक हमको जाना था, आपने एप्रॉन से ही टेक ऑफ करवा दिया, दिस इज अ गुड सिनेरियो विथ अस, सो नेवर डिड दैट, ठीक है। मींस
आप अपने एयरक्राफ्ट के आसपास देखोगे बिफोर टर्निंग ऑन योर इंजन। एनी हाउ, जब आप एप्रॉन पे अपना एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करते हो तो आप एटीसी से पूछते हो। एटीसी यही इंश्योर करता है कि आपके एयरक्राफ्ट के आसपास कोई दूसरा एयरक्राफ्ट तो नहीं है जो कि आपके इंजन के ऑन होने से डिस्टर्ब हो सके। तो आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस कितना है ये आपको पता होने चाहिए। हालांकि ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि इसके कैटेगरी लिमिटेड है। तो आपके एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन होने पे वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को डिस्टर्ब करेगा उसके कैटेगरी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नाउ नाउ वील हैव अ लुक ऑन वेग टर्बुलेंस कैटेगरीज कि कितने कैटेगरी के वेग टर्बुलेंस होते हैं। होप आई वाज क्लियर फॉर द डेफिनेशन। एटलीस्ट डेफिनेशन समझ में आया वेग टर्बुलेंस का। यस सर। तो आपको कभी भी एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन करने की जरूरत पड़े तो आप एटीसी को बताओगे कि आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस कितना है। नाउ वेग टर्बुलेंस के 3 कैटेगरी, ठीक है, लो, मीडियम, हेवी, और यू कैन से लाइट, मॉडरेट एंड हेवी। ठीक है, लो और लाइट, मीडियम और मॉडरेट, हेवी या हाई, जो बोलना चाहो आपको बोलो। हेवी बोलो या हाई बोलो, लो बोलो या लाइट बोलो, मीडियम बोलो या मॉडरेट बोलो। तो टर्बुलेंस कैटेगरी 3 कैटेगरी के, ठीक है, कौन कौन से? लो, मीडियम और हाई। अब अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट, ठीक है, इसके कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन बेसिस है वो क्या है? आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस कैटेगरी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि आपके एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है। जितना ज्यादा आपके टेक ऑफ वेट रहेंगे उतना पावरफुल आप इंजन लगाओगे, सीधा सा बात। नहीं तो अगर आप सेस्ना 172 में एयरबस का इंजन बांध दो तो उसके लोड से सेस्ना 172 दब जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपके एयरक्राफ्ट का वेट उतना ज्यादा पावरफुल आपका इंजन। सो अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट 7000 किलो से कम है तो आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस रहेगा लो। सेस्ना 172, B200, C90, बीच 390, एम्बरर 500, ये 2-4 छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं, टर्बोप्रॉप वाले छोटे छोटे, जिनका वेग टर्बुलेंस लो होता है। ठीक है, फिर वेग टर्बुलेंस मीडियम। अगर आपके एयरक्राफ्ट का वेट 7000 किलो से लेके 1,36,000 किलो के बीच में है तो आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस मीडियम है। सारे एयरलाइनर्स के एयरक्राफ्ट, एयरबस 320, 390, बोइंग 737, ATR, बोम्बार्डियर ग्लोबल, चैलेंजर, लीगेसी, एम्बरर 135, गल्फ स्ट्रीम, फाल्कन, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, प्रीमियर जेट्स, बिजनेस जेट्स, इंक्लूडिंग एयरलाइनर्स, ये सबका वेग टर्बुलेंस होता है मीडियम। फिर आया हेवी, बोइंग 777, 747, एयरबस 350, ये सब आते हैं वेग टर्बुलेंस हेवी वाले में। इनका टेक ऑफ वेट 1,36,000 किलो से ज्यादा है। देन there is only few aircraft which belongs the category of super heavy, Airbus 380। ठीक है, अपना फिर डिफेंस में चले जाते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट, एंटोनोव्स, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट है, अभी कॉमर्शियल में यूज नहीं है। वो सब हो गए आपके वेग टर्बुलेंस सुपर हेवी वाले। एक सिविल एयरक्राफ्ट था कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक जेट, उसका भी वेग टर्बुलेंस सुपर हेवी था, कॉन्कोर्ड, जो कि सिविल एविएशन से आउट हो गया। सो आपका एयरक्राफ्ट किस वेग टर्बुलेंस कैटेगरी में लाई करता है ये आपको पता होने चाहिए। तो ओनली 3 कैटेगरी हैं और बहुत कम एग्जाम्पल हैं, तो आपको ये पता रहेगा। क्लियर? तो जब भी आपको इंजन ऑन करने की जरूरत पड़े आपको पता होना चाहिए कि आपके एयरक्राफ्ट का वेग टर्बुलेंस कैटेगरी क्या है। डन? चलो, next topic was, as I told, I'll explain the things how to name your aircraft other than your registration marks। ठीक है,
बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट हैव अ लुक। क्या होता है, या तो आप अपने एयरक्राफ्ट को आपके रजिस्ट्रेशन नाम से बुलाओ, या फिर आप अपने एयरक्राफ्ट को अपने फ्लाइट आईडी प्लस आपके कंपनी के आईटा कोड के नाम से आप बुला सकते हो। आईटा कोड क्या होता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या है? एयर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एविएशन, क्या है बताओ क्या है? इंटरनेशनल एयर आईटा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। वेरी गुड। इंटरनेशनल एयर एयर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हाँ, ट्रैफिक नहीं, ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसको बोला जाता है आईटा। तो एविएशन की कंपनीज में आजकल तो जो शॉप होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, वो लोग भी आईटा का एफिलिएशन ले लेते हैं। सो आपका मान लो शेड्यूल एयरलाइन है, वहां पे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का एयरक्राफ्ट दिन में 5 फ्लाइट करेगा, तो ट्रैकिंग कैसे करोगे? एटीसी वाला भी एनोइंग हो जाएगा। यार एक ही रजिस्ट्रेशन बार बार उड़ रहा है, कैसे पता करें कि कौन सा फ्लाइट क्या कब कैसे था? उस केस में या तो अपने एयरक्राफ्ट को आप रजिस्ट्रेशन नाम से बुला सकते हो, जो भी आपके एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन आईडी है, या फिर आपके कंपनी का आईटा कोड और आपके कंपनी की फ्लाइट आईडी। अगर आपने कभी फ्लाइट से ट्रेवल किया है तो फ्लाइट का एक फ्लाइट आईडी होता है, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 6E748। दो दिस 748 इज योर फ्लाइट नंबर। ठीक है, मुंबई से पटना जो एयरक्राफ्ट जाएगी उसका फ्लाइट नंबर 748। जैसे ट्रेन नंबर्स होते हैं ना, सिमिलरली फ्लाइट नंबर होता है। फ्लाइट का मतलब एरोप्लेन नहीं, फ्लाइट का मतलब वो हवा में तय की जाने वाली जर्नी। सो मुंबई से दिल्ली जो फ्लाइट जाएगी, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, उस एयर ऑपरेशन को बोलते हैं फ्लाइट। तो उसका नंबर क्या है? तो सपोज मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट का नंबर है 748 और उसको ऑपरेट कर रही है इंडिगो, तो इंडिगो का आईटा कोड है 6E। तो आप चाहो तो उसके एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा, आप या तो उसको विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा बुलाओ, या फिर उसको बोलो आई फ्लाई 748। 6E का आईटा प्रोनाउंसिएशन है आई फ्लाई। सो वन बाय वन वील हैव अ लुक। इंडिगो का है 6E आई फ्लाई, एयर इंडिया का AI एयर इंडिया, स्पाइस जेट का है सियरा गोल्फ, उसको बोलते हैं स्पाइस जेट। विस्तारा का था यूके, उसको बोलते थे विस्तारा। गो फर्स्ट या गो एयर उसका था G8, उसको बोलते थे गो फर्स्ट। आकाशा एयर उसका है QP क्यूबेक पापा, बोलते हैं आकाशा एयर। एयर एशिया इंडिया बंद हो गई, I5 इसको बोलते थे रेड नाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस, अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया है सब, और उसका आईटा कोड है AIX। अलायंस एयर अभी भी चल रही है, उसका आईटा कोड है 9RI, बोलते हैं अलाइड या फिर अलायंस एयर। फ्लाई बिग उसका आईटा कोड है सियरा 9, सो यू कैन से सियरा 9 748 लाइक दिस। स्टार एयर उसका है, नहीं, सियरा 9 है फ्लाई बिग का आईटा कोड, बोलना है क्रिश, तो फ्लाई बिग के पायलट बोल सकते हैं दिस इज क्रिश 748, तो ATC वाला समझ जाएगा अच्छा फ्लाई बिग का एयरक्राफ्ट है और 748 उसका फ्लाइट आईडी है। स्टार एयर का आईटा कोड है सियरा 5 S5, बट उसको बोला जाता है हाई स्टार, तो स्टार एयर के पायलट बोल सकते हैं बेंगलोर टावर दिस इज हाई स्टार 478 और 748, तो वो समझ जाएगा अच्छा ये स्टार एयर का एक एयरक्राफ्ट है जो कि 748 इसका फ्लाइट आईडी है। ठीक है, सो आइदर यू कैन टेल द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी एयरक्राफ्ट और यू कैन यूज द फ्लाइट आइडेंटिफिकेशन आईडी। तो सपोज एक फ्लाइट आईडी है 798, if it belongs to Indigo, I fly 798. If it belongs to Air India 798. If it belongs to Air India Express 798. ठीक है, if it belongs to Akasa Air 798, लिखेंगे QP, बोलेंगे Akasa Air, हाई स्टार
S5446, S5446, like this. If it has belongs to विस्तारा UK 448, लेकिन बोलेंगे क्या, विस्तारा 448, तो आपके एयरक्राफ्ट को दो नाम से बुलाया जा सकता है, या तो उसका फ्लाइट आईडी या फिर उसका रजिस्ट्रेशन मार्क्स. होप आई एम क्लियर ऑन दिस टॉपिक. ओके सर। डन. अब किस एयरलाइनर का क्या आईटा कोड है, ये आपको याद करना पड़ेगा. सो जो भी 5-7 एयरलाइनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके आईटा कोड आप लिख लो, आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप इसको याद करो. इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, ठीक है. और बाय द प्रैक्टिस अगर आपको याद हो जाए तो अलग चीज है, बट इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये 4-5 हैं, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है. कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास. डन. तो इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आपको याद करवा दूंगा. हमारे लिए जिम्मेदारी सिर्फ दो ही चीज है, एयरपोर्ट का कोड रटवाना, ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्लाइट प्लान प्रैक्टिस करवाना डेली, ठीक है. एयरलाइनर के आईटा कोड आप रटो, ठीक है, 5-7 हैं, आप याद करो, 2 बार 3 बार लिखोगे पेपर पे, आपको याद हो जाएगा. हाउएवर पीछा तो मैं आपका किसी हाल में नहीं छोड़ने वाला, ये भी याद करवाऊंगा ही, क्योंकि फ्लाइट प्लान में ही ये ऑटोमेटिक आपका आ जाता है, ठीक है. इसको अलग से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दीज आर द थिंग्स. सो कहीं पे अगर आप लिखा हुआ देखते हो 6E448, तो यू कैन से आई फ्लाई 448. 6E को बोलते हैं आई फ्लाई, ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम. 6E बिलोंग्स टू इंडिगो, उसको पढ़ते हैं आई फ्लाई. AI एयर इंडिया, Sierra Golf स्पाइस जेट, UK विस्तारा, G8 गो फर्स्ट, QP अकाशा एयर, I5 रेड नाइट, ये बंद हो गई कंपनी एयर एशिया इंडिया, ये सब मिलके अभी बन गया है AIX एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है. देन 9RI अलायंस एयर, Sierra 9 फ्लाई बिग. तो अगर लिखा हुआ है Sierra 9 448, तो फ्लाई बिग वाले पायलट बोल सकते हैं बेंगलोर टावर क्रिश 448, ठीक है. बेंगलोर टावर आई फ्लाई 738, तो वो समझ जाएगा. अच्छा, यानी आपका कॉल साइन क्या है, आई फ्लाई 738. आप चाहो तो बोल लो विक्टर टैंगो रोमियो इको सियरा, या फिर आप ये बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. क्लियर. सो यहाँ पे जो आपने देखा कि आइडेंटिफिकेशन में या तो कॉल साइन है या आईटा कोड प्लस फ्लाइट नंबर है. आईटा कोड क्या है 6E, फ्लाइट नंबर क्या है 448. तो आप दोनों साइड से अपने एयरक्राफ्ट का कॉल साइन ले सकते हो. Am I clear on this topic? Yes, sir. So that's all for today. Today we have learned, let me just recap. Today we have learned, again we had revised the technique for ICAO location designator. ठीक है, 4 डिजिट ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर हमने आज पढ़ा. उसके बाद हमने देखे फ्लाइट प्लान एंड आईटा कोड्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है. इस टॉपिक को हमने एक्सटेंसिवली कवर किया. टुमारो वी विल गो टू एरोनॉटिकल फ्रेजेस एंड लेक्चर 6, 5, 6 दोनों कवर कर देंगे कल. छोटा टॉपिक है. डन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड see after 2 days we'll start practicing question, ठीक है. but don't worry, I am be little honest this time, ठीक है. I hope you guys are also little engaged in initial month of March, ठीक है. जैसे जैसे हमको इवनिंग में टाइम मिलता है we'll continue the session as per the availability, but ठीक है, but I make sure and I tell you honestly, टिल होली, ठीक है, टिल होली या होली के बाद वाला मंडे 17th, तब तक ये क्लास थोड़ा सा अप डाउन होके चलेगा ही चलेगा, ठीक है. होली के बाद से आप अपने कुर्सी की पेटी बांध के रखना कि उसके बाद से आपको चैन का सांस लेने नहीं दूंगा, ठीक है. तो होली तक जो पढ़ते हो, जितना समझ पाते हो, जितना मेरे से पॉसिबल है, आपको सब कुछ समझाते हुए पढ़ाने का I'll try my best, and till Holi
I'll cover theoretical portions in a brief. ये theoretical portion को अच्छे से धीरे धीरे करके आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बने। और एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो कसम से कह रहा हूं ये टॉपिक 5 दिन का भी नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं एज ए लेक्चर प्लान, नहीं तो आपके मन में भी लगेगा कि सर 4-5 दिन हो गए, कुछ तो ढंग का पढ़ाया नहीं आपने। देखो 8 लेक्चर के बाद क्या स्टार्ट हो गया? कॉल्स कॉल्स, प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस। पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही जिंदगी भर करनी है। ठीक है, सो 5-7 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। हो सकता है होली तक हम लोग लेक्चर 10 इससे ज्यादा टॉपिक या लेक्चर 11 इससे ज्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 17 मार्च तक में अगर हम 10 लेक्चर भी कवर कर लेते हैं, दैट इज सो मच ऑफ सफिशियंट। उसके बाद की भले आपको 8-10 लेक्चर खाली दिखाते होंगे, बट ये 5 दिन का भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो फाउंडेशन हम लोग आराम आराम से बनाएंगे, 2-2 3-3 टॉपिक करके पढ़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी स्पीड अप कर लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे स्पीडली पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर भी रिकॉर्ड होके वापस ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दूंगा। एंड आई आस्क एवरी स्टूडेंट कि प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स if you struggle in understanding any topics or if you have missed either full or portion of class। अगर आपसे आधा छूट रहा है या पूरा क्लास छूट रहा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, समझो। जो नहीं समझ पाया नोटबुक में नोट करो, अपने कॉपी में नोट करो, और जब मैं लाइव लेक्चर में प्रेजेंट होता हूं मेरे से पूछो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी डाउट 1-to-1 पोस्ट करो, मुझे बताओ कि सर ये वाला टॉपिक मैं नहीं समझ पाया। आई विल एक्सप्लेन व्हेनेवर आई विल गेट द टाइम। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने शुरू के 45 मिनट तो क्रिकेट देखने में भी स्पेंड किए। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस क्लासेस हैज वेंट टिल 11 o'clock even with 2 topics। So we'll again meet same 9 o'clock tomorrow। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। एंड मार्च में आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है, तो आईपीएल की छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई मेक श्योर पहले ही। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये सब एक आध दिन ब्रेक ले सकते हो, बट आईपीएल में छुट्टी अगर आप लोगे तो आपका एग्जाम जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि 20 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है सर, नो, यू नीड टू बी प्रेजेंट। ठीक है, चूज योर प्रायोरिटी, आपको उस टाइम प्रेजेंट रहना ही रहना है। डन। तभी मैंने इस बार पहले क्लास स्टार्ट किया था फरवरी मंथ से ही, बट नॉट एवरीवन हैज केम। आई न्यू इट कि सब लोग नहीं आएंगे। एनी हाउ स्टार्ट लेटर बट वी स्टार्ट एट अ गुड। सो वी नीड टू टेक फुल मार्च ऑफ द मंथ फॉर द सिलेबस। ठीक है, that's all for today. We'll see you tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night.